it is helping it is helping farmer also in understanding what what actions have to be taken to have the maximum yield in their field, right? So if we see a basic snapshot of Indian agriculture, geographical area is 328.7 million hectare, cropped area is 157, and a ratio of annual gross cropped area to net sown area is 150%. Rainfall we have maximum 1176, and recently this data also have been published that horticulture production is more than the food grain production. So since last 3 years, this is happening that horticulture production has surpassed the food grain production. This is because the technology farmer is using, the way farmers are uh, executing, the way farmers are using the technology in their field is giving and is bringing the change in their practice also. And ultimately, farmer is achieving higher yield if we compare to the previous practices which they do. The use of new molecules, the use of new technology, and the right information implementation is helping farmer to produce higher. So this is another overview which is talking about some of the aspects, like globally India ranks 1 in the production of pulses, pearl, millet, jute. I'll be coming to this in a specific chart type also. Rank 2 in paddy. So rank 4 largest producer of crop protection after USA, Japan, and China. Fifth largest exporter of crop protection. 58% production, total population is engaged in agriculture. Indian agrochemical market size reached a value of almost USD 6 billion in the year 2022. If it is growing around between 8 to 10% CAGR. Currently, जो agrochemical का जो market size है, that is around 3,500 to 4,000 40,000 करोड़, 35,000 से 45,000 CR के आसपास है इंडियन रुपीस में. And export also is increasing. India is one of the major center of diversity producer of 554 crops. So हमारे यहाँ पे diversity भी बहुत ज़्यादा है. Now coming अरे to ऑन है another. क्या? डलवाओ ना किसी से. Now coming to another major aspect, जहाँ पे हम बात करेंगे integrated pest management की. So key components of integrated pest management are prevent, uh, prevent the pest, monitor the pest, and intervene. So जब हम देखते हैं कि पेस्ट का अटैक है, तो लेट्स सी कि वो पेस्ट कैसा है, कितना हमें हार्म पहुंचा रहा है. देन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या ये अपने ईटीएल लेवल से ऊपर तो नहीं जा रहा. अगर ईटीएल लेवल से ऊपर जा रहा है तो इसको कंट्रोल कैसे करना है. क्या हम इसको नेचुरल वे में कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसको अब दवाई की जरूरत पड़ेगी, या कोई इंटर कल्टीवेशन जो है वो हेल्प करेगा. So this way, when we intervene and use various and several measures to control the pest, so that is these are some of the components of IPM. आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि अगर मुझे मान के चलिए बुखार है, तो बुखार होने पे मैंने एक दिन कुछ भी नहीं किया. दूसरे दिन मैंने सोचा कि मैं घर पे ही दवाई कर लेता हूँ. दूसरे दिन भी नहीं किया. तो तीसरे दिन जब और तेज हुआ तो मुझे लगा कि यार अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर ने बोला आप ब्लड टेस्ट करो. तो ब्लड टेस्ट करवाया तो पता लगा कि ये तो भाई डेंगू निकला. तो डेंगू के लिए फिर अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी. तो हो सकता है गिलोय का पानी पीना पड़े, हो सकता है कि पपीते का कुछ खाना पड़े, और हो सकता है कि फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े. सो सी फ्रॉम एक सिंपल बुखार से लेकर के जो जो मेजर्स मैंने लिए, मॉनिटर किया, उसके बाद इंटरवीन किया, और जो भी स्टेप्स लिए, ये एक तरह से एग्रीकल्चर में अगर इसको फिट इन कर दूं तो ये एक आईपीएम स्ट्रैटेजी है, राइट. तो एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं. हमने जो है पेस्टिसाइड का स्प्रे किया. पेस्टिसाइड का स्प्रे कब किया हमने, जब उसको जरूरत था. उससे पहले हमने क्या यूज किया, उससे पहले हमने बायोलॉजिकल्स दिए या फर्टिलाइजर, बेसिक फर्टिलाइजर दिया, और फिर बायोलॉजिकल्स का हमने यूज किया, फिर हमने एग्रोकेमिकल्स का हमने फिर यूज किया. अल्टीमेटली एग्रोकेमिकल्स का स्प्रे करने के बाद में डिसीज और पेस्ट जो है वो कंट्रोल हुआ,
राइट। सो अगर आप पढ़ोगे भी कि मीन्स द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑल अवेलेबल पेस्ट कंट्रोल टेक्निक, जितने भी अलग अलग तरीके की पेस्ट कंट्रोल करने के तरीके हैं उनका केयरफुल कंसिडरेशन करके कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल हो जाएगा, और उन सबको इंटीग्रेट करके, सो दैट इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, यही अब आने वाले टाइम में एडॉप्शन इज द राइट वे, वेयर आई टॉक्ड अबाउट ड्रोन्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रोन्स विच आई टॉक्ड अबाउट, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब ये सब जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब इंटीग्रेट होकर के अलोंग विद एआई, जब ये ड्रोन्स में फिट इन होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो फार्मर्स को सिर्फ स्प्रे नहीं मिलेगा, स्प्रे के साथ साथ में ही विल बी एबल टू गेट द रियल टाइम इमेज about the condition of the field, about the condition of the plants. So रियल टाइम इंफॉर्मेशन से रियल टाइम एक्शन जो है हमारा फार्मर वो ले पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट एग्रीकल्चर। और अगर एप्लीकेशन ऑफ एआई की बात करें तो सॉइल एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्रॉप साइकिल एक्सपर्टाइज, फार्म प्रोड्यूस एग्रीगेशन, फार्म एडवाइजरी और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। तो दीज विल बी द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एंड रोल ऑफ एआई विल बी फोरकास्टेड वेदर, मॉनिटरिंग क्रॉप सॉइल हेल्थ, जैसा मैंने बताया, डिक्रीज पेस्टिसाइड यूजेज अपने आप हो जाएगा जब ये सारी चीजें हम करेंगे और एक्शंस लेंगे। एंड एआई एग्रीकल्चर बॉट्स जो है तो वो हमें इंफॉर्मेशन बराबर देगा। नाउ कमिंग टू ड्राइवर्स ऑफ एग्री बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें करने की जरूरत क्यों है हमें एग्री बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, है ना। माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल जो है मिक्स है, बट मोस्टली वी कैन सी कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से मार्केट की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है, कमर्शलाइजेशन, फार्मर फोर्सेस और इंक्रीजिंग इनकम्स, liberalization, reducing government involvement, globalization of trade, change of scale, reorganization of production, marketing, association networks, changing food consumption pattern, हमारा एकदम consumption pattern is changing, demand for quality convenience food service, rural income is also increasing, infrastructure improvement also happening, सड़कें बन रही हैं हर जगह पे, रूरल अर्बन लिंकेजेस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी रिवॉल्यूशन। ये जो मोबाइल है ये आज की डेट में हमारे सभी फार्मर्स के पास में है, एंड हमारे फार्मर्स हमसे फोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर ड्राइवर फॉर एग्री बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अगर हम देखें ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन टू साइंस बेस्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर 1.0 से एग्रीकल्चर 5.0 की जर्नी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। सो नाउ कमिंग टू दी अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि क्या हमारा फार्मर वी वांट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट प्रोडक्ट और पेस्ट बट माय इंटायर क्रॉप। हमारा जो किसान है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहता कि मान के चलो कि वीड का अटैक है, वो ये चाहता है कि उसकी पूरी क्रॉप का सॉल्यूशन जो है वो हम Please, दे सकें। excuse me, sir. या Sorry for the interruption, sir. Could you please communicate in English? ओके, I'll do okay, Yeah, because I'll be not only the using हाँ, yeah, yeah, we couldn't just understand, so we basically from different states, sir. okay, let me, this is what I have asked, if you want me to communicate in English, I'll communicate in both the languages so that uh, everybody gets the understanding. So okay, hmm. So in this agrochemical business where I was talking about traditional experience agriculture transformation to science-based modern agriculture. So this involves all the data points, this involves all the transformation which is happening, where the science is meeting the agriculture. So when we are talking about smart agriculture, when we are talking about drones, when we are talking about precision agriculture, it's uh,
really important. So someone saying English, someone saying Hindi, so I'll be talking English, then I will be talking in Hindi. So like I shared, we want problem solutions, not just products, best, but my crop. So this is what a farmer is saying कि हमारे को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट का से सॉल्यूशन या सिर्फ एक क्रॉप से सॉल्यूशन जो है हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा एंटायर क्रॉप का सॉल्यूशन चाहिए. वी नीड दी सॉल्यूशन फॉर अवर एंटायर क्रॉप, राइट? So, coming to some of the important data classification types, that is operational holdings are classified in 5 classes. हमारे किसान जो हैं वो जमीन जो है मार्जिनल, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर, मीडियम एंड लार्ज. सो ये क्लासिफिकेशन जो है ये चेंज हुआ है, और ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है जहाँ पे मार्जिनल फार्मर जो है वो बिलो 1 हेक्टेयर है, स्मॉल फार्मर 1 to 2 हेक्टेयर है, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर है, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर एंड लार्ज 10 हेक्टेयर एंड अबव. So these are the operational holdings are classified in size classes, right? So see, in any marketing campaign, right? कोई भी मार्केटिंग का जो कैंपेन होता है, इन दैट व्हाट वी सी, एक गांव में अगर ये सारे टाइप के फार्मर हैं, इफ देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ फार्मर्स कैटेगरीज इन अ विलेज, so how you will be taking your product ahead? What will be your first approach? Your first approach will be to understand how many farmers are having large land holding, right? And why large land holding? Because there might be chances that the large land holding farmers are rich, and large land holding farmers will be the influencer farmers, and large land holding farmers will be using high-end molecules which no other farmers are using. So this segmentation is important when you are launching a new product. So this will help you in identification and doing the segmentation of the farmer. And large farmer को देख करके marginal, small, semi medium, medium will also take their decisions, right? So this is why this operational holding and segmentation of these holding, when you design a project, when you understand the crop pattern, and when you understand about the practices of the farmers in the specific geography, is important. Now, this is something different which I'll be talking to you. Understanding agriculture input marketing environment. So see, we have sales, we have marketing, right? So sales target approach, there are two types of approach which I am going to share. दो तरीके की approach है जो मैं share करूंगा. एक होता है sales का target approach, एक होता है marketing approach. Sales target approach क्या कहता है? What sales target approach says? It is the intention of the company to achieve a particular quantifiable sales goal, right? Suppose 2000 crore I have to achieve. So this is the quantifiable sales goal. क्वांटिफाइबल मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 2000 करोड़ का बिजनेस करना है, राइट? और इट इज अ फाइनल फिगर दैट इज अराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस प्लानिंग एंड एक्टिविटी, राइट? क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं है कि 2000 करोड़ करना है तो ये हमारी कॉन्शियस प्लानिंग और एक्टिविटी का पूरा अप्रोच रहेगा. यूज ओल्ड डेटा हिस्ट्री टू सी द ट्रेंड एंड सेल्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंट ईयर. मान के चलो गोपी नायक ने, गोपी नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मान के चलो गोपी नायक ने लास्ट ईयर किया था 1500 करोड़, उससे पहले किया था 1400 करोड़, उससे पहले 1000 करोड़. सो हम पुराने डेटा को देखते हैं और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम अपने अगले ईयर का प्लान करते हैं. एक जनरली सेल्स टारगेट का अप्रोच यही रहता है कि लास्ट ईयर आपने कितना किया था बिजनेस, इस साल आप कितना करोगे, व्हाट यू हैव डन इन लास्ट ईयर एंड व्हाट यू विल बी डूइंग इन कमिंग ईयर डिपेंड्स ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस विच एक्टेड एज एन इनहिबिटिंग फैक्टर. तो ये पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस था, है ना? तो ये एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है कि अगर मैंने लास्ट इतना किया था तो इस बार तो मेरे को उस पर 20% और जोड़ दो, वो करना होता है, वो करूंगा. तो सेल्स टारगेट मेथड फेल टू कैप्चर द मार्केट पोटेंशियल, राइट?
आप ये मान के चलो कि लास्ट ईयर इतना किया, इस साल इतना करूंगा, तो उससे क्या हम बात कर रहे हैं? वी आर नॉट टॉकिंग एनीवेयर अबाउट द मार्केट पोटेंशियल। सपोज सेम मार्केट में जहां पे 2000 करोड़ गोपी ने किया था, वहां पे अचानक से मेज क्रॉप लगती थी और अचानक से वेजिटेबल्स लगने लग गए। तो मेज क्रॉप में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है, वेजिटेबल में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा है, तो पोटेंशियल तो इंक्रीज हो गया मार्केट का। तो क्या 2000 करोड़ का वो 2200 करेंगे ओनली, या 2500 करेंगे? So this is what sales target approach. Now the marketing approach I'll be talking you is marketing approach plan to exploit the potential in the market. What Gopi Nayak will be doing, he'll not be only seeing the numbers of last year, he will be also seeing what are the different crops and what are the different potential, what were the different trade partners he worked with, and what are the new opportunities for adding those trade partners for increasing the market potential or capturing the market size or capturing the market share. So generally the reliable agriculture data regarding area under different crop is not readily available for all districts. जैसे हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप लोग भी अगर डिफरेंट कंपनीज में इफ यू आर वर्किंग, यू विल बी आस्क्ड टू शेयर द मार्केट साइज, एंड यू विल बी आस्क्ड टू शेयर द एकरेजेस आल्सो, राइट? सो जनरली गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, इवन यू सी इन द न्यूज़पेपर आल्सो, लाइक व्हेन द प्रोड्यूस प्राइस गेट्स लोअर, recently when produce price got lower in Karnataka, so we got to see that there are some of the markets where tomato is grown. So different markets data is also available on the website. The extent of use of pesticide on different crops and the stages of crop was not readily known. So this is what I was talking about. If maize crop is having less spend on cost of cultivation as compared to the vegetable, so that approach we were not knowing. So the extent of use of pesticide is important on different crops, and the stages of crops was not readily known. तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये different crops हैं और इनमें और क्या स्प्रे जा सकता है, so that we were not knowing. So see, सेल्स टारगेट अप्रोच जो है वो लिमिट कर देता है कि मैंने ये नंबर किया था तो मेरे को 20% इंक्रीज करके, 30% इंक्रीज करके नंबर लेना है। सो दैट इज ओनली सेल्स टारगेट अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच इज अ बिगर थिंग। मार्केटिंग अप्रोच जो है वो बात करेगा बिजनेस को कवर करने की थ्रू आइडेंटिफाइंग द ट्रू पोटेंशियल इन द मार्केट, राइट? सो both the approaches are important. If you know the numbers are higher, then with marketing approach and syncing the marketing and sales approach, you can achieve uh, amazing results, right? So there is one another aspect which I'll be talking about: supply chain coordination, right? Supply chain coordination में important thing is कि हम क्या promise, क्या target जो है हम ले रहे हैं आगे, right? So इसमें फ्लक्चुएशन कैसे होगा? जो डिमांड पैटर्न है, इसको समझना जरूरी है, इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, एंड जो हमारा फोरकास्टिंग है, इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कैसे हो रही हैं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मान के चलो गुरु इज ऑल्सो ज्वाइन, सृष्टि ऑल्सो ज्वाइन। सो सपोज सृष्टि इज द नेशनल सेल्स हेड। सृष्टि ने बोला कि भाई आपको 3000 करोड़ का बिजनेस ला करके देना है, and Guru said to his team, he is another manager, and he said, uh, he, I'll be achieving 4000 crore his to his team. So what Shrishti has said ki 3000, and what Guru has said 4000 to his team. So down the line, there is a fluctuation and the variable in the communication of the targets or the promise numbers. तो गुरु ने कुछ और बोला, गोपी को पहुंचते पहुंचते वो 5000 हो गया। सो देर माइट बी चांसेस ऑफ फेलियर्स वेयर अगर एक नंबर नहीं होगा तो हो सकता है 5000 का डिमांड आ जाए, एंड सृष्टि वॉज नॉट रेडी विथ 5000 ऑफ इन्वेंट्री। सो दिस कैन create shortages at the same time if
the team is not able to achieve even 2000 crore or even 1500 crore, even then you will have the failure in the entire system. So there will be so much of inventory piled up, और ये जो कम्युनिकेशन है ये अगर सिंगल नहीं रहता है तो थिंग्स विल गेट वर्सन. सो नाउ सी द डिमांड पैटर्न में व्हाट थिंग्स आर कमिंग. सेल्स इज इन्वेंट्री कॉस्ट विच आई टॉक्ड अबाउट कि बढ़ेगा, स्पेस और चाहिए होगा, इक्विपमेंट्स और चाहिए होगी, मैन पावर और चाहिए होगा, और नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स के एक्सपायर होने का चांस रहेगा. सो फ्लक्चुएशन के कॉजेस क्या है? ट्रेड प्रमोशन, मार्केट शेयर, मार्केट साइज, ये रीजंस हैं. हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है, प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में ऐसा बिहेवियर वो करते हैं, फॉरवर्ड बाइंग बिहेवियर, कि वो पहले ही परचेस कर ले, ऐसा डिमांड हम क्रिएट करते हैं. फिर क्या होता है, हम प्लेसमेंट इतनी ज्यादा कर देते हैं मंथ एंड प्रेशर के चक्कर में, तो ये मंथ एंड सिंड्रोम होता है. और फोरकास्टिंग कैन बी ट्रिकी. तो फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. और कभी कभार हम बोलते हैं कि ये वाला एसकेयू तो अवेलेबल ही नहीं है, तो एसकेयू शॉर्टेज जो है, ये गेम भी ऑल्सो इट कैन किल, राइट. सो इंस्टेड ऑफ मंथ एंड सिंड्रोम, अगर आप सेल्स में हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट वीक में ही सेल्स करनी है. आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज करते रहिए अच्छे से, और कोशिश करिए कि हर डे शुड बी अ सेल्स डे. So instead of month end syndrome, sales should be daily or weekly syndrome, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए. अब देखिए, जैसे मैंने सृष्टि का नाम लिया, मैंने गुरु का नाम लिया, गोपी का नाम लिया. सो देर इज वन इफेक्ट दैट इज द बुलविप इफेक्ट. सो द मैग्निफिकेशन ऑफ वेरिएबल इन ऑर्डर्स इन द सप्लाई चेन. इसका मतलब है कि ये जो आप एरो देख रहे हैं, जो पर्सन के हाथ में स्ट्रिंग है, ये मान के चलिए ये है 2000 करोड़, और ये यहां पहुंचते पहुंचते हो गई 5000 करोड़. सो जो मैग्निफिकेशन है, प्रोडक्ट के नंबर्स हैं, कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने में, इसका लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल हो गया. तो इसको हम बुलविप इफेक्ट बोलते हैं. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो, ये फ्लैट लाइन होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस ग्राफ. ऐसा क्यों? क्योंकि ये होने से क्या होगा, एक्सेस इन्वेंट्री हो जाएगी, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा, इनसफिशिएंट एक्सपीडिट ट्रांसपोर्टेशन, पुअर कस्टमर सर्विस, पुअर फोरकास्ट एक्यूरेसी, तो सब कुछ पुअर होगा, और इससे अल्टीमेटली लॉस ऑफ सेल होगा. इसको अरेस्ट करने के तरीके क्या हैं? कम्युनिकेशन along द सप्लाई चेन इज इंपॉर्टेंट. इम्प्रूव सोर्सेज ऑफ फोरकास्टेड डेटा. अगर जो कम्युनिकेशन है वो कॉमन होना चाहिए. सृष्टि ने बोला 2000 करोड़, दैट मीन्स कि इंटायर 54-60 मेंबर्स जितने हैं टीम में, उन सबको ये पता हो कि what सृष्टि has said that this is the number which I am going to achieve. One number, right? So improve sources of forecasted data, information sharing, establish a demand driven supply chain which reacts to actual customer order. अगर हम डिमांड ड्रिवन सप्लाई चेन की बात करें तो सिमिलरली, मतलब सेल्स को क्रिएट करने के लिए डिमांड लाना जरूरी है, डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज जरूरी हैं. तो सी द लिंकेज, जहां पे डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, जिससे सेल्स आ रहा है, राइट. सो ब्रेक ऑर्डर बैचेस, स्टेबलाइज प्राइसेस, एलिमिनेट गेमिंग इन शॉर्टेज. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच वी शुड टेक टू अरेस्ट दिस बुलविप इफेक्ट. अब देखो एग्जांपल, देखो ये कस्टमर है. कस्टमर मतलब मान के चलो कि आप हो गए, ठीक है. फिर ये आ गया रिटेलर, रिटेलर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मैन्युफैक्चरर. तो ये जो सेल्स का फिगर है कैसे घूमते घूमते जा रहा है, तो ऐसे हमें अचीवमेंट जो है वो नहीं मिलेगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अरेस्ट दैट. नाउ कमिंग, जैसा मैंने बोला कि हम इंडिया में नंबर वन पोजीशन पे हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे कि बनानाज है, अनियन है, कॉटन है, जूट है, पपाया, मैंगो, और हम इन सब में सेकंड थर्ड हैं. जो प्रीवियस में भी मैंने दिखाया, किसी में हम फोर्थ हैं. तो मैं इसको बोलूंगा कि दिस शुड बी द डिकोडिंग द अपॉर्चुनिटी. हमें अपॉर्चुनिटी को डिकोड करना चाहिए कि जहां पे हम फर्स्ट हैं वहां पे हम फर्स्ट रहने के लिए काम करें, जहां पे हम सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वहां पे हम फर्स्ट आने के लिए काम करें. क्योंकि अगर कोई देश कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं, राइट. सो गोइंग अहेड, अनदर एग्जांपल, आप ये देखिए कि 5 मेजर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी सिनेरियो अगर आप देखेंगे, राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, तो चाइना ग्रीन बार है. हर जगह पे चाइना जो है वो आगे दिख रहा है, एक्सेप्ट वन, मेज.
एंड इंडिया जो है वो रेड में आप देख सकते हो। तो जहां पे प्रोडक्टिविटी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर इंडिया टू अचीव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमें अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, और करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको इंडिया चाइना का एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि जहाँ पे हमारे पास चाइना से ज़्यादा अरेबल लैंड है, रेनफॉल है, टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन चाइना का ज़्यादा है, हम उतना पेस्टिसाइड कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। पेस्टिसाइड कंजम्पशन 13.07 केजी पर हेक्टेयर चाइना का है, इंडिया का 0.6 केजी है। जीडीपी में चाइना के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और हमारा ये। अब ये बेसिक कैलकुलेशन एनालिसिस में आपको समझाता हूं, तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, हमारा एग्रीकल्चर क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। आप देखो, चाइना का पर हेक्टेयर इनकम जो एग्रीकल्चर से है दैट इज 10,791 USD, इंडिया का 3,437। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं फर्स्ट, ये दोनों को, तो क्या निकल के आएगा? डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना पर हेक्टेयर इनकम, ये निकल के आया। ये क्या इंडिया ये पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। इंडिया के पास जमीन भी ज्यादा है, तो इंडिया के पास जमीन कितनी है? 155.37 मिलियन हेक्टेयर। तो टोटल पोटेंशियल इंडिया के पास में कितना है जो इंडिया पहुंच सकता है? तो जो जमीन है मल्टीप्लाई बाय जो चाइना और इंडिया का, इंडिया चाइना का जो डिफरेंस है, ठीक है। सो 1.142 ट्रिलियन USD डॉलर। सो अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.3 या 3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी है अप्रोक्स। तो अगर ये 1.142 हमारा एग्रीकल्चर से आता है, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 ट्रिलियन USD हमारा एग्रीकल्चर से निकल करके आए, सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 1.142। तो जब चाइना अभी जिस प्रोडक्टिविटी पे है, उस प्रोडक्टिविटी से वो आगे बढ़ेगा, और हम उस प्रोडक्टिविटी पे पहुंचेंगे। हो सकता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, हम एआई का यूज करें, हम ड्रोन्स का यूज करें, वाटर को बचाएं, जो भी मैंने अभी तक डिस्कशन किया वो सारी चीजें करें, अप्लाई करें, तो हम इस पे पहुंच सकते हैं। सो दिस दिस डेटा इज शोइंग कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। देर इज वन मिथ कि हम हमारे जो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन है हमारा बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना तो चाइना, इंडिया का मैंने क्या बताया था आपको, 0.36 केजी पर हेक्टेयर, यहाँ पे आप देखो। अब बाकी जितनी कंट्रीज हैं सबका इंडिया से बहुत ज्यादा है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, इटली। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड इज मोर देन अदर कंट्रीज। अब द मेजर रीजन ऑफ लो इन, हमारे जो फार्मर है उनकी लो इनकम का क्या रीजन है? उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती, समय पे नहीं मिल पाती, उनके पास मार्केट अच्छी नहीं है, अपने प्रोड्यूस को ले जा नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना स्ट्रांग नहीं है कि उनका प्रोड्यूस एक जगह से दूसरी जगह, या उनको प्रॉपर मार्केट और कोल्ड चेन के थ्रू जो है उनको सही वैल्यू मिल सके। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत वीक है। लेस देन 50% एरिया हमारे पास इरिगेटेड है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, किसी भी नए प्रोडक्ट को आने में 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता है। और हमारा जो जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट। नॉन अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एग्री इनपुट्स हमारे किसान को नहीं मिल पाते। कभी कभार ऐसा होता है कि स्प्यूरियस प्रोडक्ट जो ब्रांड बन जाता है, प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा किसान यूज करने लग जाता है, उसका नकली मार्केट में आने लग जाता है। तो उसको काउंटरफीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे करने वालों को भी सजा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं मैंने लिस्ट डाउन करे हैं जो हमारे किसान की इनकम को कम करने का इनका रीजन है। तो ये सारे फैक्टर्स पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे फार्मर की इनकम इंक्रीज हो सकती है। तो लेस इन्वेस्टमेंट ऑन R&D, आप देखोगे कि इंडिया का 0.65% ही है ना, R&D एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप देखो इंडिया का बहुत कम जो है इन्वेस्टमेंट R&D में है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो हमें इन्वेस्ट भी बहुत करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। वी हैव टू इन्वेस्ट इन R&D सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। Less than 50% area is irrigated. So this is what I have talked in previous slide also, that uh, again at the same time चाइना का एरिया जहाँ पे बारिश है वो इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ है, still they are having the higher productivity. So in less area we have to have maximum productivity. At the same time जब हम इरिगेशन का प्रॉब्लम कहीं पे आता है, या कहीं पे 50% एरिया इज इरिगेटेड है, तो देयर ड्रोन विल बी वेरी हेल्पफुल
use of drip irrigation will be very helpful, right? Regulatory challenges, like I said, so these are 7195 companies doing total CIB, Central Insecticide Board एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी पे 9667 कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं। उसमें से सिर्फ 2472 कंपनीज का ने केवाईसी फॉर्म फिल किया है, तो बाकी 7195 कंपनीज क्या कर रही हैं? हो सकता है कि ये गलत काम कर रही हो, या इन्होंने अपना जो है राइट वे में जो करना होता है वो नहीं किया हो। तो दैट्स वाई ऐसे एक्ट्स लाने चाहिए कि एक एक कंपनी से क्रॉस चेक किया जाए कि व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड फिल द केवाईसी फॉर्म विच हैज टू बी द मैंडेटरी थिंग। सो रेगुलेटरी चैलेंजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। 25% ऑफ टोटल पेस्टिसाइड मार्केट आर स्प्यूरियस, नकली मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस पर एक्शन लें। और देखिए, ये नकली प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं माल, और इन पे कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो इलिसिट ट्रेड है पेस्टिसाइड्स का, दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। क्योंकि ये फार्मर अगर गलत दवाई, अगर मैं इंसान हूं, मैं गलत दवाई खा लूंगा, तो सोचिए मेरा क्या हाल होगा। सेम वे प्लांट का भी हमारा ऐसा ही है, अगर प्लांट को गलत दवा जाएगी तो हमारा प्लांट भी जो है वो नुकसान, उसकी भी सेहत जो है वो बिगड़ जाएगी। आई टॉक्ड अबाउट कि हमें साइंटिफिक कम्युनिटी से कोलैबोरेशन करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धानुका ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ में MOU साइन हुआ है, जिसके थ्रू हम इंडिया में जितने केवीकेज हैं, 731 केवीकेज हैं, 11 या 12 अटारीज हैं, उनके साथ मिलकर के केवीकेज में हम जो वो खेती करते हैं उसमें हम उनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेंगे, और वहां उनके थ्रू हम फार्मर्स को रीच करेंगे, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करेंगे। सो दिस इज मी, हम उज्जैन में फार्मर्स को और केवी साइंटिस्ट के साथ में, ऐसा कभी भी किसी कंपनी ने नहीं किया जहाँ पे फार्मर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलकर के फार्मर्स को कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं वो प्रैक्टिकली शो करके बताया गया हो। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ कमिंग टू, मैंने सेल्स की बात करी कि क्या अप्रोच होना चाहिए, मार्केटिंग की बात करी, फिर आपको मिक्स इंफॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ में शेयर करी। नाउ आई विल कम टू कि हम जो प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन होता है, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं या यूज होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज वन बिग थिंग विच इज कमिंग अप, जहाँ पे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम का यूज जो है कंपनीज कर रही हैं। यू कैन सी अवर पेज ऑल्सो, यूट्यूब पे धानुका का, और फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। तो कंटेंट ऑल्सो बहुत अच्छा कंटेंट जो है फार्मर्स के लिए वी आर पोस्टिंग। की ओपिनियन लीडर्स, वर्ड ऑफ माउथ, और जो हम एम्बेसडर्स होते हैं फार्मर्स, उनको यूज करते हैं। प्रिंट मीडिया इज कॉमन, जो सब लोग करते हैं। POP मतलब पॉइंट ऑफ परचेज पे हम टेस्टिमोनियल्स, लिटरेचर्स, पोस्टर, डेमो बोर्ड, बैनर, दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम सीधे फार्मर्स के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, फील्ड डे करते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, कंपैरेटिव शो करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी शो करते हैं। मान के चलो कि अगर फार्मर ने आपके 3 प्रोडक्ट को यूज किया है अलग अलग स्टेजेस पे पूरी क्रॉप में, तो उसके बाद में हम उसको हर स्टेज पे पहले तो फील्ड डे करते हैं, उसके बाद फाइनली हम उसका हार्वेस्ट डे भी करते हैं कि 5 बाई 5 स्क्वायर फीट में हमने हार्वेस्ट किया तो क्या प्रोडक्शन में डिफरेंस आया। तो ऐसे कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस फार्मर को जब हम शो करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखाएंगे, तो फार्मर का ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज आपने उसको रेवेन्यू बताया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, राइट? क्रिएटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब एक जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आप फार्मर्स को अलग अलग क्रॉप्स में दिखा सकते हैं। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डिफरेंट कंपनीज क्रिएट करती हैं, जहाँ पे अलग अलग गांव के फार्मर्स को ला करके दिखाया जा सके। केवीके साइंटिस्ट का एग्जांपल मैंने बताया आपको, किसान मेलास जो होते हैं, यूनिवर्सिटी मेलास जो होते हैं, और कोलैबोरेशन। मान के चलो कि कोई न्यूट्रिशन की कंपनी है, वो चाहती है सीड के साथ कोलैबोरेट करना, न्यूट्रिशन सीड चाहते हैं कि हम पेस्टिसाइड के साथ कोलैबोरेट करें। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब मैंने एक रफ आपको आइडिया के लिए मैंने आपको एक चीज बना के दिखाया है कि मंथ वाइज प्लान अगर हमें करना है और सीजन वाइज प्लान अगर हमें करना है, तो क्रॉप इमेजिन करो कॉटन है, तो जो येलो वाला S है वो सोइंग हो गया, H जो है वो हार्वेस्टिंग हो गया। तो आप देख सकते हो कि खरीफ, रबी, जैद, राइट? तो मार्च में
डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, विलेज मीटिंग्स जो हैं फिर वो मार्च अप्रैल मई में हो रही हैं, मार्केट यार्ड मीटिंग मतलब मंडी में मई में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग मार्च में हो रही है अर्ली, दीज आर दी प्री प्रमोशनल कैंपेन्स, डीलर रिटेलर मीटिंग्स, नाइट विलेज मीटिंग ड्यूरिंग द सीजन अप्रैल और मई, और फिर फील्ड डेज जब क्रॉप हार्वेस्ट होने लग जाती है, या हार्वेस्ट डेज, फील्ड डेज या हार्वेस्ट डेज अगस्त या सितंबर में, राइट। तो दिस इज, एस मीन्स सोइंग, एच मीन्स हार्वेस्टिंग, टीटी मीन्स टीम ट्रेनिंग, कि हमें अपनी टीम को कब तैयार करना है। अगर हम मार्च में अपनी टीम को तैयार करेंगे तब जा करके वो अप्रैल में फार्मर के पास जा सकते हैं, तो बताने के लिए तो पहले टीम को तैयार करो, टीम को इन्फॉर्मेशन दो, फिर सोइंग से पहले सारे के सारे एक्शंस लो, और उसके बाद में फिर हार्वेस्टिंग पे फील्ड डेज और हार्वेस्ट डेज जो है वो प्लान करो। दिस इज द रफ मंथ वाइज प्लान आई मैंने ये वैसे क्रिएट किया है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक किसान क्या चाहता है? किसान ये चाहता है कि आप उसके साथ फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड रहें, आप उसको सर्विसेज जो हैं, उसको क्रॉप से रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, आप उसके लिए कंसल्टेंट की तरह काम आए, कि यार ये मेरे को सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं, मुझे अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम इशू होती है उसके बारे में भी मेरे को ये सपोर्ट करता है। जैसे उसके बच्चे हो गए, उसके एजुकेशन है, तो वो आपसे उसके एजुकेशन के बारे में भी पूछ सके, आपको इस तरीके का एक एग्री पर्सन बन के तैयार होना है, जो और इनोवेटिव आइडियाज ला सके, रिलेवेंट टाइमली इंफॉर्मेशन दे सके। मान के चलो अगर अभी एक किसान का मेरे को फोन आएगा, मैं ये मीटिंग पॉज करूंगा, मैं किसान का फोन उठाऊंगा और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको तुरंत दूंगा। तो दिस इज व्हाट अर्जेंसी फॉर फार्मर हैज टू बी, राइट। सो ब्रिंग्स द बेस्ट प्राइस विद एक्सीलेंट सर्विसेज, ही हु हेल्प मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एट रेगुलर फेज इन क्रॉप साइकिल। तो किसान जो है वो आपका एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह होना चाहिए, जिसके लिए ये सारी एक्टिविटीज और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको फुलफिल करनी है, राइट। सो दैट्स व्हाई जो एक्सपेक्टेड है फार्मर के लिए, दिस इज व्हाट बेसिक थिंग्स आर एक्सपेक्टेड बाय द फार्मर। और अगर आपने ये बेसिक चीजें करी ना, तो सेल्स मार्केटिंग सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हमारे इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं जल्दी से देख लेते हैं। क्यूबरसम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्प्यूरियस प्रोडक्ट हैं जो मैंने बताया, प्रोसेस डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन का, नो बेसिक आर&डी जैसा मैंने बताया, नेगेटिव पब्लिसिटी, पॉइजन, कार्सिनोजेनिक। मैंने आपको बताया कि हमारा 0.36 केजी पर हेक्टेयर हमारा कंजम्पशन है पेस्टिसाइड का, बाकी कंट्रीज का और ज्यादा है। पब्लिक अनअवेयर अबाउट न्यू केमिस्ट्री, जो नई नई केमिस्ट्री आ रही हैं, जो ग्रीन केमिस्ट्रीज हैं, फार्मर उनके बारे में अनअवेयर हैं, और ट्रेड ऑल्सो इज नॉट अवेयर अबाउट देम। मोर इंटरेक्शन अमंग एग्री इनपुट इंडस्ट्री विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लैब टू लैंड, तो ये ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड थ्रू द MOU, एंड आई एम रीचिंग कॉलेजेस ऑल्सो, आई एम कॉलेजेस आर रीचिंग टू मी, आई एम रीचिंग टू द कॉलेजेस। वी आर गाइडिंग द यंग जनरेशन अबाउट different aspects of agriculture and the practical things we do on ground. And this platform by AgriHunar is also one of the medium to reach you. And industry associations enable to act one voice before public and government on key issues. सो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? एग्रोकेमिकल ग्रोइंग 8 to 10% एनुअली, एनलार्ज टोटल मार्केट, न्यू टेरिटरीज, नई टेरिटरीज खोजनी चाहिए, नया क्रॉप देखना चाहिए जहां पे हम नहीं पहुंचे हैं, और नए यूजर्स जो कन्वर्ट करने हैं हमें, नॉन यूजर्स को यूजर में हमें कन्वर्ट करना है। मोर फोकस ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस, पल्सेस, कॉटन, पिंक बॉलवर्म बहुत बड़ा इशू है, सकिंग पेस्ट। मूव टू सेफर ग्रीन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया, सीइंग इज बिलीविंग, किसान को खेत में प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कंपैरेटिव ट्रीटेड वर्सेस फार्मर प्रैक्टिस, ताकि फार्मर को और बिलीव हो। और अल्टीमेटली अगर अपने हार्वेस्ट करके यील्ड स्टैब्लिश करके पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाया, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सेल्स वहीं से आएगा, और मार्केटिंग का पार्ट है। सो प्रोडक्ट क्रॉप प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सॉइल हेल्थ इज पुअर, गेट इन्वॉल्व इन रिस्टोरेशन, फार्मर डू नॉट वरी ऑन कॉस्ट, डिमांड रिजल्ट्स। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि आपका अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो किसान क्या सोचेगा कि ये तो महंगा है, मैं नहीं लूंगा। अगर आपने उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या उसको आपने वैल्यू समझा दिया, ये भी एक वैल्यू सेलिंग कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में, अगर आपने उसको वैल्यू समझाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल करके, तो फिर किसान जो है वो ये नहीं देखेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना महंगा है। किसी भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाएगा जब आप उसकी वैल्यू स्टैब्लिश कर सको। और वैल्यू स्टैब्लिश कैसे करोगे? हाउ यू विल स्टैब्लिश द वैल्यू? यू विल डेमोस्ट्रेट करके। सी
how the product is performing against the competition, what benefits the product is giving, क्या फायदे वो प्रोडक्ट दे रहा है जो दूसरा प्रोडक्ट फायदे नहीं दे रहा है, right? So technology transfer and farmer education holds the key. Advise farmer on all agronomic practices, crop rotation, entire crop. Work closely with existing upcoming FPOs also. So this is another way. Set up agri clinics and retired agri scientists in key markets. So this is another perspective. Blitzkrieg style wise marketing campaign, short term and set objectives. Off season promotion कि सिर्फ सीजन पे ही प्रमोशन नहीं करना. During that also promotion to be done. Strict control receivable inventories, quality improvement in forecasting, continuous market share improvements, develop lead farmers and spokesperson, increase interaction with government extension like I shared previously, tie up with farm machinery planters. So different sector के साथ आप tie up कर सकते हैं. Prompt handling of complaint, नो यवतमाल. कोई भी कंप्लेंट आती है फार्मर से जाओ मिलो समझो कि क्या इशू है एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग नॉट कॉस्ट प्लस बेसिस, दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. इंटेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर डीलर फार्मर्स और ऑन गोइंग प्रोसेस. किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में क्या करना होता है, आइडिया पहले देखना होता है कि क्या रिक्वायर्ड है. उसके बाद में हमें ये देखना होता है कि क्यों रिक्वायर्ड है, उसको फिर स्क्रीनिंग करना होता है. देन वी सी की इसको हम डेवलप कैसे करें, मतलब ट्रीटेड वर्सेस फार्मर प्रैक्टिस में डेमो करने के बाद में अंडरस्टैंड करेंगे क्या है. मार्केट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिसिस, अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्रिएट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस एनालिसिस. जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालोगे तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वेयर, कौन सी मार्केट में है, वो मार्केट साइज क्या है, कौन सी क्रॉप है, कौन सा सेगमेंट है डिसीज का पेस्ट का, और किस मार्केट में टारगेट करना है. सो कौन से फार्मर को टारगेट करना है. सो दैट विल बी दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट. एंड टेस्ट मार्केटिंग वेयर डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशंस, क्रॉस लर्निंग्स विल बी डन. प्रोडक्ट देन द प्रोडक्ट लॉन्च. फोटोग्राफ्स के जरिए देखते हैं जल्दी से कुछ लास्ट 5 मिनट्स में कि ये हमने टीम ट्रेनिंग करी. हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ लानेवो जो सकिंग पेस्ट और बोरर दोनों पे काम करता है. हमने इंटरनल टीम ट्रेनिंग करी, पूरी टीम को ट्रेन किया. उसके बाद हमने अलग अलग अक्रॉस इंडिया क्रॉस ट्रेनिंग करी, टीम ट्रेनिंग ऑन इन हाउस. फिर उसके बाद फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन हमने करे. हमने फिर फार्मर ट्रेनिंग करी केवीकेस के इन्वॉल्वमेंट के साथ में. हमने डिजिटल ट्रेनिंग भी करी. नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, लाइक आप एग्जांपल देख सकते हो कि डिजिटल भी आप मेरे को कई बार देखोगे कि जहाँ पे मैं अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ में मैं इंटरेक्ट करता हूँ. और दिस इज डन इंटरनेशनल पोटैटो डे पे, जिसमें थीम था हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप. सो साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ साथ में फार्मर्स को भी और साइंटिफिक कम्युनिटी को भी अवेयर करना अबाउट दी क्रॉप. दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जहाँ पे हमने केवी केस के साथ में किया. ये रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में इस साल. एप्पल में हिमाचल प्रदेश में करने को मिला जहाँ पे हमने अलग अलग फार्मर्स आए थे अक्रॉस जो एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स है. वहां पे हमने जो है फार्मर्स को गाइड किया अबाउट द सम की प्रोडक्ट्स जो फार्मर्स की क्रॉप में हेल्प करते हैं उनको ज्यादा ग्रो करने के लिए. डिजिटली कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू सक्सेस स्टोरीज को पहुंचा सकते हैं. यूट्यूब पे देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज विच धानुका हैव अपलोडेड. यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस इज वी आर यूजिंग द ब्रांडिंग पार्ट of the products as well as the message also to farmer is going that द्राक्षाच्या चांगल्या उत्पादनासाठी धानुकाची उत्कृष्ट उत्पाद means grapes के to have a quality production of grapes, Dhanuka's portfolio. So see how this digital digital and also is completely changing. So now I'll be showing some glimpse of my journey where I want you to have see the passion which I had 14 years back is still continue. So छोटे बच्चे लीफलेट से भी खुश हो जाते थे जब उनको एक लीफलेट देते थे. तो मैं यही सोचता हूँ कि अ, हम लोग नहीं खुश होते छोटी बड़ी बड़ी चीजों के होने के बाद भी, बट एक लीफलेट से एक छोटा बच्चा जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. तो आजकल हंसाना इतना आसान नहीं है, बट सी द वे मैं इनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ या मैं इनसे बात करता हूँ तो लगता है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मिंग जो है वो मैंने उस समय देखा था. आज ये फार्मर्स जो है होंगे. और फार्मर्स को टेक्नोलॉजी यूज करके उस समय लैपटॉप से फार्मर को हम दिखाते थे कि एक खेत में ऐसा रिजल्ट है, दूसरे खेत में ऐसा रिजल्ट है. फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मीटिंग्स
फार्मर्स को सेफ्टी के बारे में बताना, क्रॉप के बारे में बताना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स। 3 गांव का क्रिकेट मैच करा दिया, 3 गांव की कुश्ती करवा दी। सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स, एंड एनी इनोवेटिव कैंपेन यू कैन थिंक अबाउट कैन बी एग्जीक्यूटेड, राइट? सो केवीकेस के साथ में वेर एवर यू सी और फाइंड की फार्मर्स को अवेयर करने के लिए यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी, प्लीज यूज दैट अपॉर्चुनिटी। सो अनदर ब्रांडिंग टूल यू कैन सी, सो न्यूज़पेपर डिजिटल कवरेज के अलावा न्यूज़पेपर कवरेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी मुनाफे वाली टमाटर की खेती सुबह, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग टू द फार्मर्स, showing the field, showing the comparative difference, showing the field day, right? So these are some of the activities which I have done in over a decade, and these are some of the awards at the KVKs also recognized. Digital circulation we have done, digital launches we have done during the COVID times. This was a totally different experience when we launched Kirari, Nisodium, and one of the herbicide, One Kill. So this was for the onion herbicide. So digital, and we reached farmers also. You won't imagine that farmers also got connected with us during the COVID times. And in one meeting, there were like 400 farmers also. So technology reached farmers also. They also participated in the online meeting. They wanted their crop solution. So crop specific uh, connect we have done during that time. So digital engagement also increased. We are also connected digitally. So in chili crop, in potato crop, grapes. So I have been in the jury of I'm Lucknow, one of the event also. And this is where I am Ahmedabad Executive Education Program I have done in 2020, just before COVID. And media coverages in Dhanuka also. So during COVID times also, we went in the field with the farmers, with the retail, to execute the right product टू द राइट फार्मर एट द राइट टाइम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मर के पास में राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे जाए। सो दिस इज अनदर वे, प्रोडक्ट का केक बनवा करके रिटेल इवेंट में उसको कट करवाना रिटेलर्स के थ्रू। सो दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग। सो वैन कैंपेन इज जस्ट नॉट लाइक सिंपल वैन जो हो जाता है, नाउ यू कैन सी द प्रोडक्ट पैक शॉट्स ऑल्सो आर देयर ऑन द वैन। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू लव ट्रेवल, आपको घूमने का मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में। तो कश्मीर में गया, कश्मीर में भी वी कनेक्टेड विद द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर एप्पल क्रॉप। सो दिस विल हेल्प डेफिनेटली टू हैव हेल्दी रिलेशंस एट द सेम टाइम। ये रिलेशंस कहीं भी यूटिलाइज हो सकते हैं। तो दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, तो दिस इज विद साइंटिफिक कम्युनिटी एट ग्रेप्स रिसर्च NRCG पुणे। सो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, राइट? सो माई मैसेज टू यू इज, एक वर्ड मैं बोलूंगा बस कि इंटीग्रिटी। अगर आप वर्ड गूगल पे आप सर्च करोगे ना, तो इंटीग्रिटी के बहुत सारे मीनिंग जो हैं वो बताए जाते हैं। बट मैं चाहता हूँ आपके लिए इंटीग्रिटी का मतलब ये होना चाहिए कि कीपिंग योर वर्ड। कीपिंग योर वर्ड मीन्स अपने शब्दों का मान रखना। अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस दिया है, तो दैट प्रॉमिस हैज टू बी completed, right? So be with integrity means you are keeping your word most maximum time. तो that's why practice, हम हर बार अपने words नहीं रख सकते, तो but communicate जरूर कर सकते हैं। तो practice more and more and be with integrity. So the plant is going strong to transform India through agriculture. अगर मैं भगवत गीता की बात करूं और मैनेजमेंट को रिलेट करूं, तो कर्मा मीन्स एक्शन, ज्ञान मीन्स नॉलेज, भक्ति मीन्स डेडिकेशन, युक्ति मीन्स इंटेलेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मुक्ति मीन्स फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉइज, वॉरियर मीन एज एन एग्जीक्यूटिव, सारथी एज अ मैनेजर। सो बी अ गुड सारथी फॉर योर वॉरियर्स to have mukti and yukti together with bhakti and gyan and ultimately the karma. So you could succeed not just by innovative ideas, but by how you lead your team. Going forward, you have to lead a team. आपको टीम लीड करनी होगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपके इनोवेटिव आइडियाज तो काम करेंगे करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू लीड योर टीम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आई एम ओपन टू दी क्वेश्चंस।
एंड द फीडबैक्स। एंड आई रिक्वेस्ट कि सब अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लो। ओ Thank माय you so गॉड, much, 80 sir. Thank you so much, 87 sir. Yes, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। Expecting मैं a practical session. good afternoon, sir. सुमित, आई I'm वोंट बी Sumit टॉकिंग टू Sharma यू। from. Sumit, I won't be talking to you if you are not going to open your camera. If you Yes, sir. want to ask me question, you have to show me your face कि मेरे से सवाल कौन पूछ रहा है। हाँ, मैंने अकाउंट का डिटेल या कार्ड के डिटेल्स नहीं मांगे हैं, मैंने सिर्फ कैमरा ओपन करने के लिए कहा Yes, है। sir. तो दैट्स Good afternoon, इम्पोर्टेंट। sir. I'm Sumit Sharma from URICM. Sir, as you told that right now, we know that we have large population, so we need to agrochemicals from the more production and fulfill the wishes of the farmer. But sir, now the lots of companies they are moving in a organic, sir. So sir, how can we convince to the farmer it will be help to the our sustainability as well as the more production? Sir, सुमित, this is the main situation of the right now. Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यू हैव आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन। सो सी, टेकिंग, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है ना, दोनों अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकते, दोनों को साथ चलना जरूरी होगा, राइट। सिमिलर वे में एग्रोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल्स, राइट। और बायोलॉजिकल्स क्या है, जो जो आप कह रहे हो ना, ऑर्गेनिक में जाना है। सो अगर हमारे फार्मर्स जो हैं बायोलॉजिकल यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे स्पीशीज हैं, राइट, उनका पॉपुलेशन जो है सॉइल में वो इंक्रीज होगा, जिससे हमारे सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक बायोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल टुगेदर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ सुमित। कोविड के टाइम पे मैं काढ़ा पी रहा था, ठीक है, जब तक मुझे प्रिवेंटिव था वो, ठीक है ना, जब तक मुझे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को रेमडेसिविर की जरूरत तब पड़ी जब मेरे को कोविड हुआ और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। अगर उस समय भी मैं काढ़ा पीता ना, तो शायद मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता। तो सिमिलर वे में हमारे प्लांट को भी जब दवाई की जरूरत है, तो उसको सही डोज पे, राइट डोज, राइट क्वांटिटी, मतलब राइट डोज और राइट टाइम एंड राइट वे ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर टू हैव, राइट। तो ये दोनों को साथ Yes, sir. लेकर के चलना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली एग्रोकेमिकल्स, और हमारा अपना डिवीजन जो है बायोलॉजिकल्स का है, दैट इज बायोलॉजिक। सो जो सॉइल को इंप्रूव करने के लिए वी आर गिविंग माइक्रो सुपर विच इज हैविंग 100% एंडोमाइकोराइजा। सो देर आर सो मेनी न्यू बायोलॉजिकल्स आर कमिंग, जो हमारे सॉइल की हेल्थ को, जो पॉपुलेशन है, जो रिक्वायर्ड स्पीशीज है, उनके लिए बेनिफिशियल है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो दोनों को साथ लेकर के चलना जरूरी है। जो आप कह रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज बायोलॉजिकल लेके आ रही हैं या ऑर्गेनिक जा रही हैं, ऑर्गेनिक इज इम्पॉर्टेंट। जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर से जाकर के इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इतना ही कहना है। Yes, sir. ठीक है Sir, can I ask one more question, sir? सुमित, पहले The Yeah. बाकी और लोगों से Sorry, पूछ sir. ले I कि किसी think ने हैंड रेस किया है, तो देन विल कम टू यू। yes, yes. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. या किरण, हाय। Yes, sir. Hope you recognize me. I was associated with you during my internship at Dhanuka Agritech Private Limited. I was हम्म, handling biology Q. I was in Karnataka, Hassan. राइट। My question is regarding when there are a lot of circulation of spurious and duplicate products in the market, and due to that, where the brand image will be going down. What kind of strategies we can make as a management professionals? Please comment on this, sir. Kiran, to overcome with that sort of spurious thing which are there in the market, what can be done by the company, or what companies are doing, I'll let you know that there is a QR code in every bottle now, right? So once you will scan the QR code, that QR code is integrated with so many information and specific batch numbers. So that cannot be done or uh, created by any other person, that the one who is creating this spurious product. So, and we are
communicating farmers also in our every meeting across India that ये QR code है, you have to scan this, check the batch number. This will only not only help us in understanding the product is right or not, this will also give you the knowledge. It will take you to the YouTube page where the testimonials and product detailings are done, as well as the entire detail about the product, कौन सी crop पे जाना है, क्या dose पे जाना है, what water volume to be used. So these are the steps which companies have already started taken, already they have taken. So डिफरेंट कंपनीज के भी पोस्टर्स भी आए कि क्यूआर कोड स्कैन करो और ये पहचानो कि असली है या नहीं है. So this is the current evolution which has happened. So going forward, many more things will happen for sure. Thank you, sir. Hello. Sir, Hello, sir. Yeah, hi sir, Abhishek. Hi, sir. मैं अभिषेक बोल रहा हूँ शाजापुर से मध्य प्रदेश. मैं वर्किंग प्रोफेशन हूँ राइट नाउ. चाइल्ड Okay. एग्रीकल्चर में एज टीएम के रोल पे निभा रहा हूँ. सर यहाँ हाँ पे जी. प्रेजेंटली तो क्या रहा है कि अगर अपन क्यूआर कोड स्कैन करने का भी बोल रहे हैं ना, तो फार्मर वो अवेयरनेस नहीं ला पा रहा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट में क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है. हर प्रोडक्ट के अंदर क्यूआर कोड नहीं है सर. कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर क्यूआर कोड है, कुछ पे नहीं है. तो इस कारण क्या है, जो रिटेलर डीलर्स है, दे आर मिसगाइडिंग देम. सर इस पे कुछ सॉल्यूशन नहीं कर सकते अभी आज. हाँ, इस अभिषेक, इसके अलावा एक और चीज ये है कि जब हम फार्मर्स को टेक्निकल के बारे में बताते हैं, राइट, या यस हम यस सर. फार्मर्स को रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो जब हमारा फार्मर परचेज कर रहा है, हमारा फार्मर उस टेक्निकल का नाम लेकर के, उस ब्रांड का नाम लेकर के, टेक्निकल छोड़ दो, ब्रांड का नाम लेकर के अगर जाकर के बोलेगा कि मुझे ब्रांडिंग. ये यस. चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर रिटेलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा. तो हम जो नहीं फील्ड में सर, है ना आई एम आप. से हम्म. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो क्यूआर कोड वाला आपने अभी बताया, नकली प्रोडक्ट रियल और ओरिजिनल, और सर कुछ कंपनी अभी तक भी क्यूआर कोड नहीं अवेलेबल करवा पाई, और कर रही है तो वो स्कैन नहीं हो रहे. देखो, जो मैंने CIBRC का दिखाया ना कि टोटल 9,000 कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2,000 कंपनीज का ही KYC हुआ है. तो हो सकता है वो 7,000 कंपनीज कुछ ऐसी हो जिनके प्रोडक्ट्स में क्यूआर कोड उन्होंने डाला ही ना हो अभी तक. बट एट द सेम यस टाइम सर. अगर ऐसे प्रोडक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड पकड़े जाएंगे, तो फेजेस में सभी कंपनीज अपने सारे प्रोडक्ट्स में क्यूआर कोड लेकर के आ रही हैं. और ये एक ना मैंडेट हो जाएगा CIBRC का, जो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा. तो देर विल नॉट बी एनी ये पॉइंट कि सर वो उससे बच ये सर सके. बहुत बहुत अच्छा रहेगा सर फार्मरों के लिए, क्योंकि हाँ, चीटेड नहीं कर बिल्कुल. पाएगा कोई उनको. क्योंकि हाँ, प्रेजेंटली क्या सर, इन एमपी बहुत ज्यादा ही डुप्लीकेट माल चल रहा है. एमपी में तो बहुत ज्यादा चलता है वो. हाँ, मतलब हर जगह है, सबको पता है कि कौन सी मार्केट है जहाँ पे ये चीजें होती हैं. तो उसको रोकना बहुत जरूरी है. इसीलिए हमारा फार्मर के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. थैंक यू सर. हाँ अभिषेक, थैंक यू. Good afternoon, sir. sir, Subhajit can here. I say some question? Can I? Good afternoon. शुभ्रजीत. Yes, sir. Thank you for this opportunity and thank you for this session. It was very wonderful. And sir, I have one question, and I am speaking from Mima Institute of Management, Pune. That sir, as a freshers, right now I am in my final year. As a freshers, like which kind of skill and knowledge, like input company especially like looking for, like as compared to, for example, like you are my hiring manager. So what kind of skill and knowledge are you looking for me? सो सी, इट टोटली डिपेंड्स कि प्रोफाइल क्या है, क्योंकि एवरी प्रोफाइल हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल, राइट. Okay, बट okay, sir. एक एक कॉमन जो कंपनी कोई भी कंपनीज जो है कॉमन देखती हैं कि हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए, वो हमें कंपनीज क्या देखती हैं कि हमें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो. ट्रस्टवर्दी का मतलब, कहने का मतलब है कि वो कम से कम 3 साल अपनी कंपनी को दे सके, 4 साल कंपनी को दे सके. जनरली आज के ट्रेंड में जितने भी यंग जनरेशन है ना, वो 1 साल में या 6 महीने या 3 महीने में भी नौकरियां स्विच कर रही हैं. जॉब हॉपिंग बहुत हो रही है ना. अब देखो, मैं बिल्कुल. मैं मैं इतना बुढ़ा नहीं हूं, मैं 2010 पास आउट हूं.
तो 14 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस है मेरे को, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है। ठीक है। तो 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में धानुका इज माई सेकेंड कंपनी। तो सुब्रजीत, दो दो चीजें हो सकती हैं। या तो मेरे को नौकरी नहीं मिली, ठीक है, मैंने ट्राई किया और मुझे नौकरी नहीं मिली। या तीसरी चीज ये हो सकती है कि मैं जो रोल पे हूं, मेरे को अलग अलग रोल इतने मिले, मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को अ, अब दूसरी जगह जाने की जरूरत दिख नहीं रही है। राइट। क्योंकि मेरे को अगर Yes, sir. नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी इंटरनली ग्रो करने के लिए, तो मैं बाहर क्यों देखूंगा। पॉइंट इज कि Yes. कंपनी ये चाहती है कि कोई भी इंप्लॉय अगर आ रहा है ना, तो काम को समझना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई भी अगर मेरी टीम को ज्वाइन करता है, मान के चलो, तो मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पे आया इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है। वो तभी वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा। राइट। और अगर आया है, डेडिकेटेड है, हमें पता है कि हम फार्मर के लिए काम कर रहे हैं, और पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है शुभ्रजीत, है ना। आप Yes, sir. देखोगे कि मेरे पास 2010 से लेकर के आज तक की फोटोग्राफ्स मेरे पास में है। तो वो Hmm. जो ट्रेवल का कीड़ा है, और वो जो फार्मर के पास जाने का, ऐसी सिचुएशन बहुत आती है। अभिषेक को भी पता है कि हम जब टेरिटरी मैनेजर हम रहते हैं, तो जरूरी नहीं है हर महीने नंबर पूरे हों, है ना। और Hmm. सुनने और को भी बहुत मिलता है। बहुत इश्यू आता है, बहुत इश्यू आता है हाँ। सर। नंबर पूरा तो करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, तो सुनने को भी मिलता है। तो ये जो अभिषेक आज सुन रहे हैं ना, तो अभिषेक का ओवरऑल करियर कितना स्पैन हो गया अभिषेक आपको, कितने साल का मेरा एक्सपीरियंस करियर है। हो गया सर 4 ईयर का। तो 4 ईयर 4 ईयर के का बाद में प्रेजेंटली मान में के बना चलो, हुआ है। अभिषेक 10 साल के बाद में, अभिषेक का जो ये अभी का जो पीरियड है ना, ये एक्सपीरियंस बन जाएगा, है ना। अभी का पेन बाद का एक्सपीरियंस है। तो वो जी सर. चीजें सभी फेस करने को मिलती हैं, और वो हमें लर्निंग देती है। तो अगर थिंग्स इजी रहेंगी तो कोई वो मजेदार नहीं है, चैलेंज रहेगा तो ही मजेदार रहेगा। तो शुभ्रजीत, पॉइंट है कि कंपनी आप में ये देखेगी कि क्या आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो या नहीं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एट द सेम टाइम पैशन है, डेडिकेशन है या नहीं। अगर ये दोनों तीनों चीजें हैं ना, तो किसी भी प्रोफाइल पे आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं आएगा। Okay, thank you, sir. Hi, sir. Sir, Yes, can I Shalaka. say क्या something, चला। sir? Sir, I have some Yeah. question. So I'm Shalaka from Gramophone. So my question is around private label products. So you might be aware about the products which are getting manufactured by someone else, and other companies are just doing branding and marketing of such products, and they are selling in the market. So it's not like they are directly competing with the traditional agri input companies, or their market share is so high. But I wanted to understand about the future of such private label products. See, Shalaka, it totally depends how the chemistry is performing, right? So Okay. I'll give you one example. Suppose if a product like Spinotrem, right? So it is a product with brand name Delegate. So they have given Delegate to us. So initially it was 9(3) product, right? So 9(3) product is something which is exclusively with one company. So when we give the product to the other company, that becomes the 9(4) product. So now Spinotrem is a 9(4) product. It is with different companies also. And how it will be impacting or how it will be there in the market, it totally depends on the performance of that technical, and कि उसमें resistance जो है वो आया है या नहीं है. So if the product is performing still and it is not having resistance, so then it will be definitely be in the market for longer period of time. I talked about that we are having very less investment on R&D. Mostly the products which Indian companies are selling are Japanese or Chinese. But mostly these are Japanese product. So I'll give you one example. We have one product, Amicelbrom, that is for late blight and downy mildew of grapes. So 2 years, 3 years, 3, 4 years, we have sold that product alone. Now, there is one company, Bharat Certis, that they have brought with the brand name Hinode. So we have given to them also. At the same time, Japanese companies will ask you to have the higher volumes.
At the same time, you alone cannot get that higher volume. You need to have one partner also, or two partners, or three partners. So if the technical is performing, then the acceptability will be high. And if the technical is not performing, it will go off from the market. So there are so many new technicals which are coming. Japanese companies themselves are going to come in the market in near future. So मॉलिक्यूल्स का कमी नहीं रहने वाला है, और जो पुराने टेक्निकल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे नए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स. लाइक वी नेवर न्यू कि फ्लुक्सामेटामाइड, ब्रोफेनलाइड और डिफरेंट ये जो केमिस्ट्रीज हैं ये 1800 से 2000 रुपीज में फार्मर परचेज करेगा. बट नाउ farmers are purchasing that molecule also because these molecules are giving higher efficacy. So till the time efficacy is there, the farmer is going to purchase. So this is a huge ocean of molecules and market. So इसमें तो opportunities will be very high. And we are connected to Gramophone also. I just saw one post of Gramophone recently. You guys had your Rabi planning meet also. Yes. Yes. है ना? So Yes. I am not remembering the name of Sardarji was from IIM Lucknow. He is the co-founder also. Navneet. So I am closely connected with Navneet, and we also discussed what we can do to have more collaboration and to reach higher number of trade partners and farmers in Madhya Pradesh. So yes. Yes, Yeah. sir. Thank you so much. Thank you, Shilakam. Hello, sir. This is Harshit Dubey. I have a question. I have a question regarding I am fresher now and I am pursuing my MBA ABM. So I want to know that how to get a job and what skills we have to improve that helps to get a job in a repetitive company like Dhanka. हर्षित, आप अभी कॉलेज में हो. कॉलेज में जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमारे को बहुत लर्निंग मिलती है इंटर्नशिप के थ्रू, राइट? तो वो जो लर्निंग है इंटर्नशिप के थ्रू, उसको मैक्सिमम जितना कर सकते हो अच्छे से करना. अगर 2 बार इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो इंटर्नशिप जो है आपको कंप्लीटली चेंज कर देगी, है ना? तो वो करने के बाद में देर आर डिफरेंट कंपनीज जो इनिशियली फील्ड का अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि वंस यू आर थ्रू योर एमबीए देन आपको फील्ड में ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप सेल्स में जाओ चाहे आप बिजनेस डेवलपमेंट में जाओ. सो जितना हम सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट को हम समझेंगे, फार्मर्स के पास जाकर के समझेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एल्स कैन बी डन टू सपोर्ट फार्मर्स, सो दैट फिर आप मार्केटिंग में आओ तो आप वो सारे स्टेप्स कर सको जो आपको लग रहा था कि मिसिंग है. तो हर्षित 3-4 years पूरे डेडिकेट करो. मैं सभी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि हम इनिशियली अपने 2 साल 3 साल अगर हम फील्ड में देते हैं तो उसके बाद में बाकी के सारे जितने भी ईयर्स हैं वो कंपनीज आपको ढूंढेंगी. बिकॉज 3 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में आप अपने आप को ऐसा डेवलप कर लोगे कि यू विल क्रिएट योर सेल्फ एज अ ब्रांड इन द मार्केट. सो वर्क ऑन क्रिएटिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड इन द मार्केट. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम अपने आप को सिंपल, हम बेसिक चीजें ही रखेंगे, डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. पहले लोग हाथ से टेस्टिमोनियल लिखते थे, अब वीडियो के थ्रू टेस्टिमोनियल्स जो है वो कैप्चर करते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको भी देता है कि आपको ऐसा एक्सट्रोवर्ट बना देगा कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपने कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया है, बट जब आप टेस्टिमोनियल ले रहे हो हर्षित, तो ऐसा लग रहा है कि यार हर्षित कितना अच्छा फार्मर से इंटरव्यू कर रहा है. तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डू ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग रिलेटेड और मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज यू कैन, राइट? और जो अपॉर्चुनिटी कॉलेज में मिल रही है, जो स्टेज मिल रहा है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, प्रॉपर पार्टिसिपेट करो, और चीजें फिर डेफिनेटली विल बी इन योर साइड. Hello, sir. Yes, Sir, I Shubham. have some questions, sir. Hello, sir. Yes, Am I Shubham. audible? Hello. Check just for 2 minutes. Hello. शुभम, Yes, sir. Yes, बोलो. sir. Sir, I have some questions, sir. हाँ सर, शुभम मैंने क्वेश्चन पूछो.
हाँ, मैंने वो एक मतलब मैंने वो एक कंपनी से इंटर्नशिप किया था सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। एक सीड बेस्ड कंपनी था। तो मैंने जो मतलब मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है जो मैंने देखा, मतलब सेल्स में ही था, मतलब मैं ज्यादातर तो देखा था कि मतलब डिमांड लाने के लिए किसी प्रोडक्ट का दो तरीका होता है। एक होता है कि प्रोडक्शन में दिखाया कम है, कि मतलब जैसे आप बताया कि प्रोडक्शन कम है तो पहले पहले खरीद लो, वो एक होता है। लेकिन जो रिटेलर और जो होलसेलर वाला है, वो क्या करता है, वो उनका एक अलग ही मेथड है। वो क्या करता है, वो सब प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है और फार्मर्स को बोलता है कि अभी खत्म हो गया है। तो जब सोइंग टाइम पीछे चला जाता है, तब वो उस प्रोडक्ट को ही मतलब हाई प्राइस में सेल करता है। और प्रॉब्लम जो होता है, मतलब हम मतलब हमको जो प्रॉब्लम हुआ था इंटर्नशिप के थ्रू, तो मैंने जब मतलब मैं जब कैंपेन करने के लिए गया था, या फिर फार्मर्स मीटिंग या फिर लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, तब फार्मर्स ने पूछा था कि तो ये क्या आपके पास है अभी? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन सारे दुकान में अवेलेबल है। सारी एग्री जो मतलब सारे जो रिटेलर और होलसेलर में है, अवेलेबल है। लेकिन फार्मर जब उधर गए, उधर बोले कि नहीं, अभी तो अवेलेबल नहीं है, अभी तो खत्म हो गया है, बाद में आएगा। तो ये फार्मर पूछ रहे हैं कि आप एक बात कह रहे हो कि अभी अवेलेबल है और इसका प्राइस थोड़ा ये है वो सब है, लेकिन वो प्राइस बढ़ा के कर रहा है, काटमनी टाइप्स हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब, इसका सॉल्यूशन क्या है? शुभम, ये क्लियरली अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स कि वहां पे जो टेरिटरी मैनेजर है उसको कम्युनिकेशन अपने आगे जो है वो करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई भी एक्शन हो रहा है जिससे आपका प्रोडक्ट होल्ड हो रहा है, ये कहीं पे भी कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करेगी। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे स्टार्टअप हो, कोई भी अपने प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट हो रही है, नीड फार्मर की है, तो कोई भी ये होल्ड नहीं करेगा, राइट। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कंपनी के सीनियर्स उस पर कुछ एक्शन लेते, और सभी ट्रेड्स पे हम कोई भी नए प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको नहीं देते। हम स्पेसिफिक सेगमेंट करके ट्रेड को देते हैं, ताकि ऐसे ट्रेड जो जिसने नहीं दिया, दीज शुड नॉट बी इन द लिस्ट जो वो माल बेचें, राइट। क्योंकि वो वही बेचेंगे जिसमें उनको फायदा होता है। आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, सही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फार्मर को दे रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और फार्मर को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझा करके आपने हार्वेस्ट डे कर दिया, सारी चीजें कर दी, प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर दिया, तो वो फार्मर के पास जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहा है तो उस पर फिर एक्शन इमीडिएट होना चाहिए कि उस ट्रेड को स्टॉप करो, उसको माल ही मत दो, जो माल पड़ा है सब उठा करके ऐसी जगह लाओ जहां पे वो राइट ट्रेड हो। तो राइट सिलेक्शन ऑफ ट्रेड, शुभम, इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज नॉट डन इन योर केस, यस सर, यस सर, थैंक यू राइट। सर। या यस सर। Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Tanuja will take your question, then we'll come to the next question. यस तन्नु। Okay, then. गुड आफ्टरनून सर। सर एज मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सपोज अगर कोई न्यू ब्रांड है, लाइक हमें अगर उस चीज की प्रमोशन करनी है, बट वो इन्वॉल्व है डिजिटल टूल्स के रिगार्डिंग, तो फार्मर्स हो गए या मिलर्स हो गए, वो उस चीज को कैसे अडॉप्ट करेंगे? मतलब क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती है जो हमारी फील्ड में हमें काम आएंगी? तनुजा, एक बार दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन, मैं आधा क्वेश्चन समझ पाया हूँ। ओके, सपोज सर जैसे कोई डिजिटल टूल्स है, हम उसमें अगर एंगेज हैं, तो ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जो सपोज फार्मर्स को या मिलर्स को यूजफुल होगी उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए? आप बात कर रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए फार्मर के पास, या डिजिटल हाँ टेक्नोलॉजी जी। के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हो उसमें से आप? दोनों चीजें आ गई है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा, तो वो उसमें डिजिटल एआई यूज है। डिजिटल अगर प्रोडक्ट है। हाँ जी, उसमें एआई यूज है, मशीन लर्निंग उसमें यूज हो रही है। तो हम चाहते हैं कि अब जो मिलर्स हैं वो चीज को यूज करें, बट दे आर हैबिचुअल ऑफ द आइटम की वो वर्नियर यूज कर रहे हैं या फिर एक्सपेंसिव मशीन यूज कर रही हैं। राइस ग्रेन एनालाइजर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो कैसे, मतलब उनको मैं कैसे उनको वो कर सकते हैं, रीच आउट करें, या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती तनुजा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राइट सिलेक्शन ऑफ मार्केट, जो मैं सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि हम कौन से सेट ऑफ सेगमेंट को हम वो डिजिटल टूल टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो जो, मान के चलो अगर मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं उसकी है? शुरुआत करूंगा यूपी ईस्ट से, राइट, और सेंट्रल यूपी से, इंस्टेड ऑफ महाराष्ट्र, इंस्टेड ऑफ आंध्र प्रदेश, इंस्टेड ऑफ पंजाब और इंस्टेड ऑफ हरियाणा,
राइट। तो सिलेक्शन ऑफ मार्केट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत अर्ली होगा। आपने ये पढ़ा होगा अर्ली एडॉप्टर और फिर लेगार्ड्स एंड में जा करके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम सही सेगमेंट ऑफ फार्मर जो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। फर्स्ट वी क्रिएट एग्जांपल्स विद देम, और एट द सेम टाइम एक मार्केट भी सिलेक्ट कर ली, उसमें भी ऐसे फार्मर्स होंगे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते होंगे, जो अर्ली अडॉप्टर होंगे। तो उनके बारे में हमें वहां के टॉप ट्रेड से पता चलता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इस केस में कि मार्केट आइडेंटिफाई करनी है, राइट। मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेड है जो हमें राइट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द राइट सेगमेंट ऑफ फार्मर्स। फिर वो राइट सेगमेंट फार्मर्स के पास में हम ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं का मतलब क्या है, एक आइडेंटिफाई करो, उसके यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल क्रिएट करो। टेस्टिमोनियल कैसे क्रिएट करोगे, जब आप उस टेक्नोलॉजी का यूज और बेनिफिट उस फार्मर के थ्रू आप इस्टेब्लिश कर सकोगे। तो वो इस्टेब्लिश करो। वो इस्टेब्लिश करने के बाद में जो की ट्रेड हैं जो उस टेक्नोलॉजी को परचेज कर सकते हैं, उनको दिखाओ, शोकेस करो, ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड दोनों। एट द सेम टाइम वो सक्सेस स्टोरी को उन मार्केट्स में डिजिटली सर्कुलेट करो जहां पे आप चाहते हो कि ये इन इन मार्केट्स में जाना चाहिए। तो ये डिजिटली भी कम्युनिकेशन हो जाएगा इन दोज मार्केट, एज वेल एज जो लाइव आप जहां कर रहे हो, जहां पे वो इस्टेब्लिश कर रहे हो, उन फार्मर्स को वहां पे मैक्सिमम आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप करोगे तो आपको बेनिफिशियल बेनिफिट मिलेगा। सर अगर हम इसमें एड जनरेट करना चाहें तो इज इट लाइक फार्मर्स इजीली करते हैं उस चीज को? देखो, एड जनरेट तभी करना चाहिए जब आपका प्रोडक्ट एक लेवल पे स्टैब्लिश हो चुका है। एक नए प्रोडक्ट को लेकर एक नए प्रोडक्ट को लेकर के मोर एंड मोर रिजल्ट्स शो करने चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग द एड्स। मैं मान के चलो कि हमारे एग्री इनपुट में क्या होता है ना, हम जीप कैंपेन करते हैं। हम हर प्रोडक्ट पे जीप कैंपेन नहीं कर सकते हैं। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने वो रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो फर्स्टली हमें उसके रिजल्ट्स को इंटरनली टीम को समझना चाहिए, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल टीम को समझना चाहिए। देन हमें उसको एड के थ्रू प्रमोट करना चाहिए। एड किस चीज का देते हैं, जो ब्रांड बन गया होता है, या पता है कि हाँ ये ब्रांड का एक्सटेंडेड ब्रांड है, राइट। मतलब मान के चलो कि एक प्रोडक्ट आता है आईफोन का, नया वाला आईफोन है, पुराने वाला आईफोन के बाद का अगला वाला आईफोन है, तो वो स्टैब्लिश ब्रांड का है। अगर वो ब्रांड स्टैब्लिश नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश नहीं है, तो फर्स्ट उसको उसका एक यूजर बेस बनाना पड़ेगा। उस यूजर बेस पे फिर देन यू कैन प्ले अपॉन जैसा आप चाहते हो। ओके नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू तनुजा। Good afternoon, sir. राज, आकाश। Hello. Uh, Thank you, sir, for this interpool session. I want to ask one question. What is the role of branding in sales and marketing, and how to compete against a strong brand? रोल ऑफ ब्रांडिंग तो बहुत बड़ा है। मतलब ये है कि प्रोडक्ट को जैसे कपड़े पहनाओगे वो वैसा दिखेगा, राइट। सो ब्रांडिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट हमारा जो ब्रांड है वो स्टैब्लिश हो सके। एंड ब्रांडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कम्युनिकेशन। what communication you give about your product, that gets into the brand, right। तो अगर वो कम्युनिकेशन जाएगा राइट वे में, तभी वो ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश हो सकेगा। तो वो उसका फिर कम्युनिकेशन ब्रीफ वी क्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, एंड विद दैट कम्युनिकेशन ऑल ब्रांड स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट गेट्स created and integrated. So that is one part, right? And second thing, what you ask, ki how? How to compete against strong brand? See, स्ट्रॉन्ग ब्रांड से compete करने का एक सिंपल बेसिक तरीका यह है कि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से ज्यादा क्या वैल्यू दे रहा है।
है ना, what additional value your brand is giving as compared to the competition. So it's really very important to understand that and establish that. तभी दैट्स वाई जो प्री सीजन होता है या जो लॉन्चिंग से पहले का टाइम रहता है उसमें हम प्रोडक्ट्स के मल्टी लोकेशन ट्रायल्स वी डू टू अंडरस्टैंड हाउ अवर प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक और एनी कॉम्पिटिटिव ब्रांड। तो वो अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमें उसको एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तभी वो ब्रांड compete करेगा जब वो एडिशनल वैल्यू दे रहा होगा। अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, you need to restudy your product कि how your product is different from the competition. It's not only about the price value, it is about the value which is farmer is getting or customer is getting for any brand. Thank you, sir. गुड So आफ्टरनून सर। before, हाँ मनोज, बिफोर यू आस्क मी क्वेश्चन, जितने लोग कनेक्टेड हैं, जैसे परसेंटेज कम होता जा रहा है, 80 से 68 हो चुके हैं। सो यू पीपल कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, आई एम देयर, यू कैन सी माई प्रोफाइल सुबोध गुप्ता। सो वेर एवर एनी सॉर्ट ऑफ शेयरिंग्स यू वांट टू हैव, इंटरेक्शन यू वांट टू हैव, वी कैन कनेक्ट ओवर देयर। सो मैं सर सभी को जस्ट करता जस्ट हूँ वन most of- क्वेश्चन सर। या मनोज, या आस्क मी प्लीज। It is related to every sales person who is working in private sector, sir. When we people are joining as freshers in the private company as a sales executive or sales officer, whatever it may be, sir, what should a person or who is in the sales department should do to achieve the targets which is given from the company, sir? Manoj, very good question. First of all, suppose you have been assigned one geography, example Guntur, right? Yes, sir. Yes, sir. So what you can do to achieve your target? So first thing is business is coming from trade. So there will be two important aspects. First is trade, second is farmer, right? So see Yes, that sir. you are having the right set of trade or not. If you are not having the right set of trade, you have to increase the count of trade. You have to understand study the competition, like 5 companies, how many trade and which are the locations they are having the trade partners. And see, map your company also in that key, is my company trade count is competitive against the competition or not. So first thing, study about the trade, understand that what business they are getting from the competition and what business you are getting from the trade. So you need to see the market trade counter share of that trade partner of competition as well as yours. This way, you can have your maximum share by increasing the count, as well as Manoj, most important thing is retail reach, which mostly Yes. people ignore. They only focus on 3, 4, 5, 6 distributors in their territory. They don't reach to the retail. So see, retail is situated mostly in the villages, right? Yes, And sir. to reach at every retail, it is really very important to get the retail share. So if you are having maximum retail count, you will see your liquidation also will happen. Your placement also will happen. So just increase the trade retail and see the magic what retail can bring to your product. And it will also increase the farmer footfall at the trade point when you will be doing the farmer activities. And another adding to that, whatever field activity you are doing on ground, try to involve a retailer in that. Ask your retailer that I will be conducting activity for you. Tell me together how we can uh, do the activity for showing farmers the best results of our products, or uh, showing the results of any specific product. So
if you will involve retail in your retail partners in your farmer activities, the more confidence retail will get. At the same time, they will be happy to order more, and they will be having higher confidence than any other brand. So these are some of the basic thing, and farmer reach is most important thing. At the same time, retail reach, and at the same time, understand which are the competitors, distributors, and what sort of distributors you are having. So all these three analysis have to be done to have the right way of taking sales in your geography. Thank you so much, sir. It was very helpful answer, sir. Thank you very much. Thank Sir, you, Manoj. I have another Hello. question. Like, if we don't want to work in field, then in which segment we have to prefer as an agricultural student? Harshit, can you repeat? Like, if we don't want to in field work as an agricultural student, in which segment we can prefer? If we don't want to work in field, like sales or marketing in field, then can you suggest me some segment in agriculture sector? Harshit, it will be very difficult for me to suggest, because see, when we say agriculture, right? So agriculture itself It should is be fully. done on ground. I want you to have the reality check. I want you to understand how the farmer is doing the practice, right? So uh, I have also done 7-8 years in sales. So that was the reason I wanted to be in sales, so that I can understand what are the issues, what are the concerns, and how I can support them. Still being in marketing, I'm always being in sales only. So that's why there is no difficulty for me to interact with the sales team and with the farmers and the trade. So apart from this, there is another important thing which is coming, that is the drone, which I talked about. In drones, drone pilots are also coming. So that is a field where again you have to go in field for the spray. है ना? So But like there are many people who have concern about going to in field work. Then is any हर- like is any position to in work in तो फिर office? फाइनेंस और अकाउंट्स बचता है, लेकिन हम Why, हमारे फाइनेंस अकाउंट्स को भी हम बोलते हैं कि इफ यू डोंट ट्रेवल टू योर ट्रेड, यू वोंट अंडरस्टैंड कि उनका क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमारा अकाउंट्स भी सेल्स में है, हमारा सप्लाई चेन भी सेल्स में है, हमारे सब लोग सेल्स में हैं, मैं भी सेल्स में हूँ। Yes, sir, तो yes, sir. जो ऐसा बोलता है उसको बोल दो कि मेरे से इंफॉर्मेशन मत लो, आई वांट कि पहले तुम फील्ड में एक्सपीरियंस करो, देन गो अहेड, है ना? Okay. Thank you, sir. हाँ, अभिषेक, यू रेज्ड योर हैंड अगेन, बताओ। ये हमारा सर आपकी कनेक्टिविटी के लिए क्या आपके कई कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं आप? सी मैं मेरा लिंक्डइन अकाउंट से आप कनेक्टेड हैं ही हैं, और मैं ऑलरेडी अपना मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। और मैं नंबर सिर्फ इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि अगर इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको नौकरी लगवा सकता हूँ किसी को भी। अभिषेक, आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो नंबर शेयर करने से कुछ नहीं होगा, नंबर मैंने सभी के लिए शेयर कर दिया ग्रुप में, है ना? तो थैंक यू सर। नेटवर्किंग, सर ये मुझे गाइडेंस के लिए चाहिए नंबर, कि जैसे हाँ, मार्केटिंग करता हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ कंसल्ट रहता है, तो जैसे आपसे कंसल्ट कर सकते हैं तो फिर उसी के आगे बढ़ना सी, मेरे को भी आप लोगों से सीखने को मिलेगा। देर विल बी ऑलवेज लर्निंग एक्सचेंज, लर्निंग शेयरिंग। सो ईच वन ऑफ यू कैन गाइड मी कि जो आप कर रहे हो अपने वर्ल्ड में वो मुझे नहीं पता है, तो दैट आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। अब ये क्वेश्चन आया है, आई हैव अ क्वेश्चन सर, दैट हाउ एग्री बिजनेस कंपनीज adapting their sales and marketing strategies to meet the growing demand for sustainable and organic products while also ensuring profitability and scalability? ठीक है, तो लाइक आई सेड कि कोई भी कंपनी जो ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं, जैसे आईपीएल इज डूइंग दैट,
तो उनका अपना सेट ऑफ बिजनेस है, अपना वॉल्यूम है, वैल्यू है। वी वांट टू कम इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो, तो सिर्फ बायोलॉजिक हमारा नहीं, हम गोइंग फॉरवर्ड हम ड्रोन सर्विसेज में भी ऑलरेडी वी आर देयर। इन प्रिसीजन फार्मिंग वी आर कोलैबोरेटेड विद फाइलो, जो फार्मर्स को ऑन ग्राउंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर को लेकर के। वी हैव कोलैबोरेटेड विद ग्रामोफोन ऑल्सो, वी हैव कोलैबोरेटेड विद दी हट ऑल्सो। सो ऑल मेजर प्लेयर्स विच आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाएगा जब हम बेसिक चीजें सही रखेंगे, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो या किसी को और कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक, देन आई विल हैंड ओवर टू राज हेलो। और हेलो। यस रोहन। 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 हेलो। यस रोहन रोहन। कैमरा ऑन करो फिर हेलो करते हैं। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि फ्रेशर के पास में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। मुझे नहीं दिखा रोहन कहाँ पे स्किल्स हैं, दिखाओ जरा चेहरा दिखाओ अपना। चेहरा जिस दिखाने के लिए सर बन, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन। जिस बंदे में स्किल है मैं उसको देख तो लूं पहले उसके सवाल से पहले। मैं स्किल्स कौन सी होनी चाहिए ये बोल रहा था, मैं मेरे में स्किल्स नहीं है। अरे रोहन नहीं, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन कर लो, यहाँ माइक के जस्ट बगल में होगा स्टार्ट वीडियो। हाँ हाँ। यस अब ग्रेट। देखो। अब आ रहा है। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि कौन से स्किल्स होनी चाहिए फ्रेशर के पास। रोहन, एक फ्रेशर जो है वो स्किल डेवलप करता है, और जो फ्रेशर नहीं भी है वो भी स्किल डेवलप करता है, राइट, है ना। हाँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये स्किल होना चाहिए या ये स्किल होना चाहिए, ठीक है ना। हम्म। जो जो चाहिए वो ये चाहिए कि जो टाइम आप दे रहे हो लर्निंग के लिए, जो आपको कंपनी इंडक्शन करेगी, वो इंडक्शन अच्छे से हो, वो लर्निंग अच्छे से हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब जस्ट कीप इट सिंपल। अगर मैं आपको सिंपल सभी को समझाता हूँ देसी देसी भाषा में, कि अगर बॉल शॉट पे जा रही है तो बैकफुट पे जाकर के आप पुल शॉट मार सकते हो, ऑफ साइड के बाहर जा रही है तो उस पे पुल नहीं मारोगे, उस पे जो है आपको स्क्वायर कट मारना पड़ेगा। तो जैसे बॉल आ रही है उसको उस हिसाब से खेलो। तो जैसे जैसे जो जो लर्निंग आएगा उसको उस हिसाब से करो। जस्ट कीप इट सिंपल। कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये स्किल होना चाहिए, है ना। स्किल हम सब में है, सभी में सेम स्किल है। अब ये है कि हम उस स्किल को कैसे यूज करना है, किस समय पे करना है, कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। ठीक है। सो हाँ। थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। तपस ने बड़ा सही सवाल पूछा है कि हम ज्यादा पैसे के लिए फील्ड वर्क चुने या सेल्स मार्केटिंग का ऑफिस वाला जॉब। अगर आप फील्ड में काम करोगे तो पैकेज बढ़ेगा, उसके बाद में और बढ़ाने के लिए फिर आप मार्केटिंग में स्विच कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि जो मार्केटिंग में है उसका पैकेज बहुत ज्यादा है, हो सकता है सेल्स वाले का पैकेज और ज्यादा हो क्योंकि उसे इंसेंटिव्स और ज्यादा मिलते हैं जो मार्केटिंग को नहीं मिलते हैं। तो इट इट टोटली टोटली डिपेंड्स। सो पैसा अपने आप आएगा, जस्ट आप इंडस्ट्री में टाइम दो। टैलेंट की बहुत कमी है हमारे इंडस्ट्री में, तो अच्छा टैलेंट, डेडिकेटेड टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, जो फार्मर्स को राइट इंफॉर्मेशन दे सके। तो जस्ट लर्न, जितना आप टाइम देंगे उतना लर्न होगा। और जस्ट डू द बेसिक्स राइट, जो करने हैं एट द राइट टाइम। डिसअपॉइंट नहीं होना। और बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो इन सारी फीलिंग्स से ओवरकम करके जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। ट्रेवल करने का मौका ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलता। द मोर यू ट्रेवल द मोर यू लर्न। सो जस्ट कीप इट सिंपल। मैंने ग्रुप में नंबर भी शेयर Hello, कर sir. दिया था। या Hello, उमरानी sir. ओवर। I have last question. ओके। Especially in sales and marketing, we female students, most of the time we hear that we cannot do sales and marketing. That's not secure for us because we hear bad languages or some problems like in contacting in physically or when communicating it with call. So how can we face that such situations? See, in my team also there is one girl who is looking after East also and North also.
now things are have went बियॉन्ड इन दिस इंडस्ट्री. आई मस्ट से दैट पहले ऐसा होता था कि जब मैं कॉलेज जाता था, सेशन लेता था, एक या दो गर्ल्स नजर आते थे. आज आधी जनता जो है वो गर्ल्स की नजर आती है. एंड मोस्टली दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ऑल्सो. सो things are changing, Umrani, and at the same time, girls are more focused than boys, which we have observed. And uh, opportunities girls के पास में ज़्यादा हैं. If they work in field around 1 or 2 years, corporate में उनको ज़्यादा entry easily मिल जाता है as compared to boys. Because वो 2 साल में boys जितना 4 साल का काम करके learning ready हो जाते हैं. Right? So opportunities are there. सभी companies में now thing is कि they want that the जो gender है, equality है, it has to be there, right? So Shalaka is doing amazing work at Gramophone. So there are so many examples. So even in different companies there is a gender thing now. हमारे यहाँ पे भी ऐसा है कि इतने female employees होना जरूरी है. तो it is happening also now कि सभी जगह पे female employees are also present. So इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा है वर्ल्ड. इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड. तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एंड चैलेंजेस सभी को आते हैं, फॉर बॉयज ऑल्सो एंड गर्ल्स ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक कि जब हम नई जगह पे जाते हैं तो बटरफ्लाईज नई जगह पे जाने पे भी हमें अजीब सा लगता है. तो कोई उसमें चैलेंज नहीं है, हो जाएगा. जस्ट फेस द चैलेंज. वो चैलेंज आपके लिए एक्सपीरियंस बन जाएगा. देन यू विल बी शेयरिंग एट सम प्लेटफॉर्म सम टाइम. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you once again for such fruitful session, sir. The strategies and techniques you have shared today will undoubtedly help all of us. And to all the participants, thank you for your active participation. I hope all your doubts has been resolved. We look forward to see you in our last and the ultimate session. And as always, stay curious and keep learning, keep growing. Thank you, Raj sir, for giving me the opportunity to host such a wonderful session. At last, I hand over this session to our respective Raj Thakur sir, founder of Your Agri Story, to conclude the session. Sir, please. Thank you so much, sir, and also participants. काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है. आप सभी लोग फीडबैक एक बार ग्रुप में दीजिएगा मुझे. और बाकी कल एक और सेशन है हम लोगों का, उस सेशन में भी हम लोग मिलते हैं. और एक बार थैंक यू सो मच सर का, जो जी सर ने टाइम दिया. एक्चुअली सर को मैंने मेल किया तो सर ने टाइम निकाला. जैसे मैं प्रोग्राम्स के बारे में सर को बताया, काफ़ी अच्छा मुझे सर का भी नेचर लगा. क्योंकि मैं लिंक्डइन पे सर को देखता रहता था, लेकिन मेरा बहुत मन होता था सर से कनेक्ट होने का, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था. बट कैसे मुझे मेल आईडी मिली वहाँ से, तो मेल आईडी से मैं सर से कनेक्ट हुआ. और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसको मैं सोच रहा था कनेक्ट होने के लिए, उनसे आज हमारे प्रोग्राम में एज ए स्पीकर के रूम में आए हुए हैं. तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे जो इन्विटेशन था उसको स्वीकार किया आपने. Thank you, Raji. Thank you, Subodh sir, once again. Thank you. Thank you so much. Let's get connected on Thank LinkedIn. you. Thank you so much. Bye bye. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Raj. Everyone, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.